Hello, dear children. This is Preeti Chhabra, and I welcome you all to Learning Never Stops. Today, we are going to start with the new chapter Atoms and Molecules. Now, to start with, if I ask you that can you all see an atom with the naked eyes? All of you will say a no. Fine. If I ask you if you cannot see the atom with the naked eyes, do they exist? The answer is yes. We all know today that atoms are the building blocks of all the matter that exists around us. Fine. What is matter? Anything which you can see, you can feel, sense, fine, which occupies space is matter. Like the book which you are reading is matter. The food you eat, the air you breathe, everything which occupies space, you can sense it, you can feel it, you can touch it, anything and everything around you, around us is matter. And the very building block of all the matter that exists around us is atom. But we cannot see the atom with our naked eyes. Fine. Today we all know so much about atoms because बहुत सारी एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ हो चुकी हैं, साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है एंड टुडे मॉडर्न टेक्निक्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं जिसमें एटम्स को देख पाना भी पॉसिबल हो गया है. बहुत सारे हाई मैग्नीफाइंग पावर्स के माइक्रोस्कोप्स हैं जिसमें एटम्स आर विजिबल. बट अराउंड 500 BC great ancient Indian and Greek philosophers, they used to wonder, कि जो मैटर है कुछ तो है उसमें ऐसा which cannot be seen but is there. They used to wonder. The first name which is taken when we study atoms is of our own great ancient Indian philosopher Maharishi Kannad. Okay, he was the first one who gave a postulate कि मैटर जो है हमारे अराउंड that can be further divided, it is divisible, and उस मैटर को उन्होंने नाम दिया था पदार्थ. Okay, he was an Indian philosopher, so he said the matter to be पदार्थ. और उन्होंने कहा कि this पदार्थ, the matter, it is divisible. Fine. And he said कि जब आप उस मैटर को ब्रेक करते रहोगे, छोटे छोटे टुकड़ों में और ब्रेक करते रहोगे, तो हर बार आपको छोटे छोटे और पीसेस ऑफ द सेम मैटर, छोटे छोटे पीसेस मिलेंगे उस मैटर के. फाइन. जैसे सपोज आप कोई स्टोन ले लो, इफ़ यू ब्रेक द स्टोन तो आपको बड़े स्टोन के छोटे छोटे पीसेस मिलते रहेंगे. एंड देन ही सेड, अभी कोई साइंटिफिक या एक्सपेरिमेंटल प्रूफ भी नहीं था, बट ही पॉस्टुलेटेड कि इफ़ यू गो ऑन ब्रेकिंग द मैटर इनटू स्मॉलर पीसेस, अ टाइम विल कम व्हेन यू विल गेट अ पार्टिकल which will not be further divisible. यानी एक टाइम आएगा कि उन छोटे छोटे पीसेस में एक टाइम आएगा कि ऐसा पार्टिकल आएगा, इतना छोटा पार्टिकल जिसे फर्दर डिवाइड कर पाना पॉसिबल नहीं होगा, जो इनडिविजिबल होगा. फाइन. उस पार्टिकल का नाम उन्होंने दिया परमाणु. ठीक है. He was the first one to give it a name and he called it परमाणु. यानी परमाणु उन्होंने कहा कि वो सबसे छोटा पार्टिकल है जो मैटर को, किसी भी मैटर को जब हम डिवाइड करते रहें, स्मॉलर पीसेस में ब्रेक करते रहें, तो ब्रेक करते 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 एक ऐसा पार्टिकल आएगा जिसे फर्दर ब्रेक कर पाना पॉसिबल नहीं होगा. दिस पॉस्टुलेट ही गेव इन अराउंड 500 BC. आफ्टर महर्षि कन्नड़, another ancient philosopher, Pakuda Katayama, he said, he elaborated this doctrine. and जो इन्होंने कहा था कि smallest particle परमाणु है, उन्होंने कहा कि जो smallest particle है वो exist करता है combined form में, independently नहीं, कुछ combined form में exist करता है to give us various forms of matter. Just imagine, कोई scientific study नहीं, कोई proof नहीं, कुछ भी नहीं पता कि क्या है, but then they gave this postulate. Fine. महर्षि कन्नड़ said कि परमाणु है जो indivisible particle है of the matter, and then Katayama he said that कि वो जो particle है वो combined state में exist करता है to give us different forms of matter. Then Greek philosophers Democritus and Leucippus, they also gave the same postulate in around the same era,
that matter, when you keep on dividing the matter into smaller particles, a stage will come that we'll get a particle which will not be further divided, it will be indivisible. And Democritus termed that particle as atom. Okay, he coined this term atom, which means indivisible. Indivisible. This atom word means indivisible. Democritus gave this word. But these were just, philosophical ideas. कोई experimental work, कोई scientific work नहीं हुआ था to validate these ideas, to prove these ideas till late 18th century. It took so much of time. The things which were said or postulated back in around 500 BC, उसको experimentally prove करके, scientific work करके prove करने के लिए it took so much of time. So by the end of 18th century, scientists ने कुछ differences notice किए. Differences between what? Elements and compounds. ठीक है, उन्हें दिखा कि कुछ एलिमेंट्स हैं और कुछ मैटर जो है वो कंपाउंड के फॉर्म में है, एंड उनको डिफरेंसेस नज़र आए बिटवीन एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स. अभी भी एटम्स की स्टडी नहीं हुई थी कि एटम्स क्या है, एंड कोई ऐसा साइंटिफिक प्रूफ नहीं था. बट हाँ, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स कुछ डिफरेंसेस हैं, ये अभी साइंटिस्ट्स ने देखना, उनको समझ आना शुरू हुआ. ठीक है, क्या डिफरेंस है एलिमेंट्स? टुडे वी नो कि एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स क्या है. एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर टू गिव अस कंपाउंड्स, बट एट दैट टाइम जब ये स्टडी स्टार्ट हुई थी, जब डिफरेंसेस नोटिस करना साइंटिस्ट्स ने स्टार्ट किया था, तो दे बिकेम वेरी मच इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट व्हेन दे केम टू नो कि एलिमेंट्स क्या होते हैं, और दे केम टू नो कि एलिमेंट्स कंबाइन करके ही कंपाउंड्स बनाते हैं. देन दे वर वेरी मच इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट कि किस तरह से एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं एंड क्यों करते हैं, एंड क्या चेंजेस आते हैं जब एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं टू गिव अस कंपाउंड्स. नाउ द होल केमिस्ट्री, जो भी केमिस्ट्री हम पढ़ते हैं, वी नो कि इट इज़ बेस्ड ऑन द केमिकल रिएक्शंस. केमिस्ट्री क्या है? We study about atoms, we study about molecules here. We study how these elements they combine, किस तरह से reaction होते हैं, किस तरह से compounds मिलते हैं. Fine. So the very base, the foundation of the chemical science was given by or was led by a great scientist, Lavoisier, who gave us two very important, laws ऑफ द केमिकल कॉम्बिनेशन. 2 लॉज दिए उन्होंने जिस तरह से केमिकल्स कंबाइन करते हैं. उन्होंने बताया कि क्या 2 लॉज फॉलो करते हैं जब कंबाइन करते हैं कुछ एलिमेंट्स, कुछ जब कॉम्बिनेशन होते हैं, केमिकल कॉम्बिनेशंस होते हैं, तो क्या रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स के बारे में उन्होंने समझाया कि कौन से लॉज फॉलो करते हैं व्हेन द रिएक्शन टेक्स प्लेस. ठीक है, किसी भी एलिमेंट में कंबाइन करके जो कंपाउंड बनता है, या टुडेज डेट वी नो सो मच अबाउट रिएक्शंस की, वी नो कि किस तरह से रिएक्टेंट्स कंबाइन करते हैं टू गिव अस प्रोडक्ट्स. तो ही वाज द वन who stated 2 very important and the fundamental laws of the chemical combinations. Now, these are the 2 very important laws of chemical combination. जब भी chemical combination यानी chemical reaction होता है ना, तो 2 laws follow होते हैं. वो कौन से rules हैं? First law is law of conservation of mass. Okay, conservation of mass means कि जब भी कोई reaction होता है, तो जो reactants होते हैं, जितने मास में उनका रिएक्शन हो रहा है, यानी जितना वेट, सपोज यू टेक 2 केमिकल्स नेमली X एंड Y. ठीक है, X एंड Y 2 केमिकल्स हमने लिए जिसका रिएक्शन होने वाला है. ठीक है, जिनके बीच में रिएक्शन होने वाला है. रिएक्शन होगा तो प्रोडक्ट भी मिलेंगे, है ना. नाउ X एंड Y की एक स्पेसिफिक क्वांटिटी ले लो. सपोज आप 1.25 ग्राम X ले रहे हो एंड सपोज 2.35 ग्राम आपने Y केमिकल की क्वांटिटी ली है. तो एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप किया गया, एक दिखाने मतलब देखने के लिए कि क्या जब ये केमिकल रिएक्शन हो रहा है बिटवीन द 2 से X एंड Y, 2 रिएक्टेंट्स या 2 केमिकल्स के बीच में जो रिएक्शन हो रहा है, तो जो प्रोडक्ट मिल रहा है उसमें इन रिएक्टेंट्स के जितने का जो मास हमने लिया एक्सपेरिमेंट के टाइम पे, जितना 1.25 ग्राम ये हुआ एंड 2.35 ग्राम ये हुआ.
तो एक मास आया, एक वेट आएगा ना दोनों का कंबाइन करके। तो जब सेपरेटली इनका मास है 1.25 एंड 2.35, तो जब रिएक्शन हो जाएगा एंड वो दोनों कंबाइन करेंगे तो जो मास आएगा क्या वो इनका ही टोटल होगा या फिर कुछ अलग मास होगा? ठीक है, आई होप आई एम क्लियर। 1.25 ग्राम 2.35 ग्राम हमने एक्स एंड वाई दो केमिकल्स लिए, तो इनका जो प्रोडक्ट आने वाला है आफ्टर देयर कॉम्बिनेशन, आफ्टर द कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स एंड वाई, जो प्रोडक्ट आने वाला है क्या उसका मास इनका ही टोटल होने वाला है या कुछ कम या ज़्यादा होगा? ये प्रूव करने के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट हुए, जिसके लिए कुछ सिंपल इक्विपमेंट्स लिए गए एंड ये दोनों ही केमिकल्स का सोल्यूशन प्रिपेयर किया गया। ठीक है, एक्स का भी सोल्यूशन इन वाटर से 10 ml ऑफ वाटर, 10 ml ऑफ वाटर में एक्स का सोल्यूशन बनाया गया, यानी 1.25 ग्राम ऑफ वाटर ऑफ द एक्स केमिकल in H2O 10 ml of water, and Y का भी 2.35 ग्राम in 10 ml of water। इन दोनों का 10 ml वाटर में सोल्यूशन प्रिपेयर किया गया। इस रिएक्शन के लिए एक सिंपल सेटअप हुआ, सेटअप किया गया, एक सिंपल सेटअप विथ अ कोनिकल फ्लास्क। फाइन, इसका जो 10 ml वाटर में सोल्यूशन बना, इस कोनिकल फ्लास्क में उस सोल्यूशन को डाला गया। ठीक है, एंड Y का जो सोल्यूशन बना इन सेम 10 ml ऑफ वाटर, 10 ml ऑफ वाटर में Y का भी सोल्यूशन बना। ठीक है, एंड उसको लिया गया एक टेस्ट ट्यूब में। फाइन, दिस इज द टेस्ट ट्यूब। इस टेस्ट ट्यूब को हैंग किया गया विद द हेल्प ऑफ अ थ्रेड और यहाँ पे इसे क्लोज कर दिया गया। ठीक है, ये एक कॉर्क से बंद कर दिया गया। ठीक है, नाउ दिस इन ये वाली जो टेस्ट ट्यूब है इसमें है सोल्यूशन Y एंड कोनिकल फ्लास्क में सोल्यूशन है X। ठीक है, नाउ इसमें कोनिकल फ्लास्क में सोल्यूशन X भी है, सोल्यूशन Y भी है, बट यू कैन सी कि ये जो टेस्ट ट्यूब है ना, ये टेस्ट ट्यूब में जो सोल्यूशन Y है एंड यहाँ पे कोनिकल फ्लास्क में जो सोल्यूशन X है, ये अभी तक मिक्स नहीं हुए हैं। दिस हैज़ बीन हैंग्ड in the solution in the conical flask, keeping this in mind कि ये अभी मिक्स ना हो पाए। ठीक है, अभी रिएक्शन ना हो, तो ये थ्रेड की हेल्प से, दिस इज द थ्रेड की हेल्प से इसे हैंग कर दिया गया है टेस्ट ट्यूब को केयरफुली, कि अभी टेस्ट ट्यूब में जो सोल्यूशन है और कोनिकल फ्लास्क के सोल्यूशन ये मिक्स ना हो। ठीक है, अब इस पूरे सेटअप का वेट लिया गया, वेट किया गया, मास लिया गया इसका कि इसका वेट कितना है। ठीक है, नाउ वंस द मास वाज टेकन, इसके बाद इसे स्वर्ल किया गया, यानी मिक्स किया गया। अब अलाउ किया गया इन दो सोल्यूशंस को मिक्स करने का, मिक्स किया गया इन सेंस। जब ये दोनों सोल्यूशन मिक्स हो गए तो क्या हुआ? ऑब्वियसली रिएक्शन हुआ। ठीक है, एक्स एंड वाई व्हेन मिक्स्ड, ये दोनों सोल्यूशन जब मिक्स हो गए तो दोनों ही केमिकल्स में केमिकल रिएक्शन हुआ, रिएक्टेंट्स में रिएक्शन हुआ, तो कुछ प्रोडक्ट बना होगा। ठीक है, जो भी प्रोडक्ट बना, से एक्स वाई, ठीक है, एक्स वाई सपोज प्रोडक्ट बना, तो अब इस फ्लास्क में, इस कोनिकल फ्लास्क में एक्स सेपरेट और वाई सेपरेट नहीं है, वो कंबाइन करके एक्स वाई कंपाउंड या एक्स वाई प्रोडक्ट बना चुके हैं। ठीक है, जो भी प्रोडक्ट बना, वी हैव टेकन केयर ऑफ दिस थिंग कि हमने यहाँ पे एक कॉर्क लगाया हुआ है टू इंश्योर, वाई दिस कॉर्क इज हियर, टू इंश्योर कि अगर प्रोडक्ट में अगर कोई गैसियस प्रोडक्ट बना हो तो वो एस्केप ना हो, या थोड़ा सा भी कोई पार्टिकल ड्यूरिंग स्वर्लिंग कुछ भी यहाँ से एस्केप ना हो, जो भी रिएक्टेंट्स हैं अंदर ही हो और जो भी प्रोडक्ट है वो भी इस फ्लास्क के अंदर ही हो। तो ऐसा एक सिंपल सेटअप बना। अब जब प्रोडक्ट बन गया, रिएक्शन हो गया, तो फिर से वेट किया गया, फिर से इसका मास देखा गया कि कितना है, एंड इट वॉज फाउंड कि द मास वॉज कंजर्व्ड। ठीक है, सो दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, विच स्टेट्स दैट द मास can neither be created nor be destroyed. Fine. The mass in a chemical reaction can neither be created nor be destroyed. जो mass हमने reactant का दिया, वही mass जब product बना तो वो mass was conserved. So the first chemical combination का जो law है, it states that the mass can neither be created
nor be destroyed in a chemical reaction. So this is the first law of conservation of mass, which is the very, foundation of any chemical combination, any chemical reaction. The second law states that the law of constant proportions. Proportion in sense, suppose I ask you कि water का क्या proportion है, mass wise अगर इसका मैं proportion देखूँ, water का proportion in sense कि here I'm talking about water compound. It is made up of two elements, namely hydrogen and oxygen. तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किस रेशियो में, किस मास में कंबाइन करते हैं? हाइड्रोजन का मास 1 है, सिंस देर आर 2 हाइड्रोजन, सो मास हो गया इन वाटर, हाइड्रोजन का मास हो गया 2 एंड ऑक्सीजन का मास वी नो इट इज 16. सो किस रेशियो में प्रेजेंट है वाटर में, किस रेशियो में प्रेजेंट है? रेशियो इज ऑफ 1:8. इस रेशियो में प्रेजेंट है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एंड ये रेशियो कांस्टेंट रेशियो है. अब ये वाटर सी वाटर हो या रिवर वाटर हो या रेन वाटर हो, कोई भी वाटर हो, द रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन एनी सोर्स फ्रॉम वेयर यू गेट द वाटर, कहीं पे भी किसी भी सोर्स से वाटर मिला हो, कोई सा भी पानी हो, उस वाटर का जो कॉम्बिनेशन है ना, जो केमिकल कॉम्बिनेशन है, केमिकल कॉम्बिनेशन इज गोइंग टू बी द सेम. इट इज H2O एंड रेशियो जिस रेशियो में ये प्रेजेंट है ये दो एलिमेंट्स, वो है 1:8. ठीक है. ही सेड दैट इफ यू टेक 9 ग्राम ऑफ वाटर, और 9 ग्राम ऑफ वाटर को अगर आप डिसोसिएट करते हो, तो डिसोसिएट मीन्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को सेपरेट करना. दैट मीन्स डिसोसिएशन. आप वाटर को डिसोसिएट कर रहे हो, तो द 9 ग्राम ऑफ वाटर को अगर आप डिसोसिएट करते हो, तो बाय मास उसमें से कितना, 9 ग्राम में से, ये 9 ग्राम वेट वाटर का है, दैट मीन्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का कंबाइंड वेट है. तो 9 ग्राम में से किस रेशियो में यू विल गेट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन? यू विल गेट 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन and you will get 8 grams of oxygen. Every time you dissociate water, you will get 1 gram of hydrogen and you will get 8 grams of oxygen अगर आप 9 gram of water को dissociate करते हो तो. ठीक है. That means उस 9 gram में हाइड्रोजन का contribution होगा 1 gram एंड ऑक्सीजन का contribution होगा 8 gram. उसके मास के contribution की बात कर रही हूँ मैं, बिकॉज ये किस मास रेशियो में प्रेजेंट है? ये प्रेजेंट है 1:8 के रेशियो में. इफ 1 पोर्शन ऑफ द मास इज ऑफ हाइड्रोजन, देन 8 पोर्शंस इज ऑफ द ऑक्सीजन. सपोज आप अमोनिया की बात करो, NH3, तो इनका क्या प्रपोर्शन है? इट इज 14:3. दैट मीन्स अगर आप अमोनिया डिसोसिएट करते हो तो 14:3 के रेशियो में यू विल गेट नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन इन अमोनिया. ठीक है. तो बेस्ड ऑन दिस द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन वाज स्टेटेड एज इन अ केमिकल सब्सटेंस, लाइक हियर यू सी दिस इज अ केमिकल सब्सटेंस, this water, it's a chemical substance. So the law states that in a chemical substance the elements, ठीक है, elements जिससे वो compound बना है, जिससे वो chemical बना है, the elements are always present in a fixed proportion by mass. अब वो किसी भी सोर्स से आया हो वो केमिकल, किसी भी तरह से प्रोड्यूस हुआ हो वो केमिकल, सपोज अमोनिया, तो यू विल ऑलवेज गेट, अमोनिया में कौन से एलिमेंट्स हैं? नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन. ऑलवेज कहीं से भी प्रोड्यूस हुआ हो ये अमोनिया, यू विल ऑलवेज गेट जो एलिमेंट का जो कॉम्पोजिशन है ना वो सेम ही रहने वाला है बाय मास. जो एलिमेंट्स का जो बाय मास उनका जो कॉम्बिनेशन proportion है वो सेम रहने वाला है. दैट मीन्स एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन अ डेफिनेट प्रपोर्शन बाय मास. ठीक है. यहाँ पे वो प्रपोर्शन है, इन केस ऑफ अमोनिया इट इज 14:3. ये हमेशा इसी प्रपोर्शन में प्रेजेंट रहने वाले हैं. एंड वाटर में इट इज ऑलवेज 1:8. ऑलवेज इसी प्रपोर्शन में ये प्रेजेंट रहने वाले हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन when they are going to form water in a combined state. ठीक है. So the law of constant proportion states that the chemical substance, in a chemical substance, the elements are always present in a definite proportion by mass. Fine. Now
सबसे मज़े की बात है कि जब ये स्टडीज़ हो रही थी ना, अभी भी एटम्स की क्लैरिटी नहीं थी, किसी को भी एटम्स क्या है नहीं पता। इसी टाइम पे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी आई। अभी तक ये दो लॉज आ तो गए थे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के ये है जो लॉ फॉलो करते हैं, केमिकल कॉम्बिनेशन जो लॉज फॉलो करते हैं वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शंस, बट they were unable to properly explain these laws. So John Dalton, he was the one who again took the name of the indivisible part of the particle atom. Atoms जो indivisible particles हैं, जो अभी तक एक philosophy ही थी, just the name atom was coined, the term it was coined, और अभी तक वो एक philosophy ही थी. He then started working, he worked on this philosophy and could explain the two laws. डाल्टन की जो एटॉमिक थ्योरी थी, उन्होंने वापस वो जो ग्रीक फिलोसोफर ने टर्म किया था, जो नाम दिया था एटम, he took it into consideration and he said कि एटम्स ही हैं जो इंडिविजिबल पार्टिकल्स हैं, एंड बेस्ड अपॉन दैट ही could explain these two laws, law of conservation of mass and law of constant proportion. Atomic theory के basis पे he was the one who could actually then explain. Now Dalton gave an atomic theory and the theory stated that कि मैटर हमारे अराउंड जिस भी फॉर्म में हो, एलिमेंट हो, कंपाउंड हो, इवन मिक्सचर हो, कुछ भी फॉर्म हो एलिमेंट मैटर का, it is composed of the smallest particle, atom. He gave some postulates of his atomic theory. Let us study his postulates. So let us quickly look at the postulates of Dalton's atomic theory. The first postulate is, he said, all matter is made up of very tiny particles called atoms. ठीक है, इन्होंने जो भी थ्योरी बनाई, जो भी इन्होंने स्टडी की, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने बताया कि जो भी मैटर अराउंड अस है, हमारे अराउंड जो भी मैटर है, ये बहुत ही छोटे पार्टिकल्स का, सारा मैटर बहुत ही छोटे पार्टिकल्स का बना हुआ है. द थिंग विच वॉज postulated in 500 BC. Now after so many years, he gave the same thing in his postulate as कि all matter is made up of very tiny particles called atoms. Okay, he used the same term which the Greek philosopher gave. Atoms, then he said, are indivisible particles, that is, they cannot be created or destroyed in a chemical reaction. Atoms जो हैं वो indivisible हैं. Today we know कि atoms के भी सब particles हैं, which we'll be studying later on in the other chapter. But here for now, what his theory stated was कि atoms जो हैं वो indivisible particles हैं. That means atoms को और further divide नहीं किया जा सकता. And ये जो atoms हैं, they cannot be created or destroyed. That means atoms वो last particle है जो एक्चुअली रिएक्ट करता है, किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, एंड ड्यूरिंग दैट रिएक्शन और दैट प्रोसेस उन एटम्स को ना तो क्रिएट, दैट इज वी आर स्टडिंग अबाउट द लॉज, जो अभी हमने लॉज देखे थे केमिकल कॉम्बिनेशन के, जिसमें वी स्टडीड के द मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. सो एट एटॉमिक लेवल पे हिज थियरी स्टेटेड कि वो एक्चुअली एटम्स हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में, और वो जो एटम्स हैं वो सबसे छोटे पार्टिकल हैं किसी भी मैटर के, जो भी मैटर हमारे अराउंड एग्जिस्ट करता है इन एनी फॉर्म. And during the reaction, वो जो atoms हैं, they can neither be created nor can they be destroyed किसी भी chemical reaction में. Next, he stated that atoms of a given element are identical in mass and chemical properties. He could say कि किसी भी elements today we know कि elements भी are made up of atoms. जैसे if I say कि oxygen, if you take the element oxygen, that means it is made up of oxygen atoms. If I say hydrogen, that means hydrogen element, it's an element and it is made up of hydrogen atoms, है ना. That means जो oxygen element है, if I talk about compounds, so I will get different elements of different atoms. But if I talk about an element, any element, say hydrogen, nitrogen, oxygen, जितने भी elements exist करते हैं, if I take an element, तो that element is made up of that particular atom. ठीक है,
एक एलिमेंट में किसी और एलिमेंट का एटम नहीं हो सकता। वो पर्टिकुलर, अगर मैं ऑक्सीजन एलिमेंट की बात कर रही हूँ, दैट मीन्स उसमें सारे जो भी एटम्स हैं वो ऑक्सीजन के ही एटम्स हैं। If I talk about hydrogen, if I talk about sulfur, तो sulfur element is made up of sulfur atoms. Then he stated, today we talk all these things very easily because हम वो सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं. All these have been experimentally proved. Scientists ने बहुत work किया है, and today we have all these things in front of us ready to be read and understood. But ये जो टाइम की बात हो रही है ना, जब ये पॉस्टुलेट्स आए थे, थियोरीज आई थी, उस समय ये भी नहीं पता था कि कुछ अनसीन पार्टिकल है भी या नहीं, वो क्या है. एंड द स्टडीज़ वर जस्ट गोइंग ऑन, एंड कोशिश हो रही थी समझने की कि वो पार्टिकल्स क्या होंगे, कैसे होंगे, एंड ऑल दैट स्टफ. सो एट दैट टाइम ही स्टेटेड दैट जो भी ये पार्टिकल्स हैं, जो एटम्स हैं किसी पर्टिकुलर, किसी भी गिवन एलिमेंट के, दोज आर आइडेंटिकल इन मास. यानी उस एलिमेंट के जो एटम्स हैं वो सारे आइडेंटिकल हैं अपने मास में और अपनी सारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में. अगर ऑक्सीजन में एटम की बात करूँ तो सारे ऑक्सीजन एटम्स का मास वही है, सारे ऑक्सीजन एटम्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सेम है. दिस इज़ व्हाट ही स्टेटेड. एंड देन ही सेड दैट एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, फाइन, they have different masses and they have different chemical properties. Obviously we know that atom of nitrogen is very much different from an atom of sulfur. Atom of oxygen is very much different from the atom of carbon. अपने मास में, उनके मास में डिफरेंस है, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंस है. टुडे वी नो दिस. और क्या थ्योरी उनकी स्टेट करती है कि फिफ्थ postulate is atoms combine in a ratio of small whole numbers to form compounds. ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि हाफ एटम कंबाइन कर रहा है किसी 3/4 एटम के साथ और कोई केमिकल बन रहा है और कोई कंपाउंड बन रहा है. ऐसा नहीं हो सकता कि 4.6 part of an atom is combining with 3.5 part of some atom. No, it is not possible. तो ये जो atoms का combination होता है, he could state he could give this postulate. He could state that ये जो atoms combine करते हैं जिस ratio में, वो ratio whole numbers हैं. ये कोई fractional ratios नहीं हैं जिसमें atoms combine करते हैं to give compounds. Last postulate was relative number and kinds of atoms are constant इन अ गिवन कंपाउंड, जो कि हमने लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में देखा. ठीक है, कि जो एटम्स हैं वो कांस्टेंट हैं इन अ गिवन कंपाउंड. वो काइंड्स ऑफ एटम भी वही है और उनका प्रोपोर्शन भी वही है किसी भी गिवन कंपाउंड में, जो कि हमने लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में देखा कि उनका सोर्स कुछ भी हो. इफ़ इट इज़ वाटर, इट हैज़ टू बी 1:8, इट हैज़ टू बी 2H2O. That means 1 proportion of hydrogen is to 8 proportion of oxygen. So relative number and kind of atoms. Kind of atoms, if it is water, it has to be H2O. If it is ammonia, it has to be NH3. If it is carbon dioxide, it is always CO2. Fine. If it is H2O2, it is not water. It is hydrogen peroxide. So the number of atoms and the relative number of atoms and the kind of atoms which combine to form a given compound, that is always constant. We cannot say कि आज water H2O है and किसी और country के water का chemical formula H2O नहीं है. No, it is always, when it is water, it is always H2O. So this was the last postulate which Dalton's atomic theory stated. So today I end my video here. In the next video, in the next class, we'll study about what is an atom. Okay, we'll study about the atomic mass, relative atomic mass and all. So I hope I was clear. I could explain the topic till here. If you have any queries, any doubts, please feel free to ask me in the comment section. I would love to help you out and hope to see you all in the next video also. But for that, you need to subscribe to the channel. Till then, take care, stay safe, and bye bye.